Hello student, now today I am going to explain you the first chapter Letter to God from your first flight textbook or grade 10th standard. Now this chapter or Letter to God is written by the G.L. Fuentes. This chapter is going to explain about the condition of farmer. So first we are going to understand about the writer. Now you can see the image. He is a G.L. Fuentes. Now Arrecife, July 11, 1897, he was born, and January 13, 2002, he was died. He was a fisherman, and the first Meta of the Pillar, the boat belonging to the American writer Ernest Hemingway. Fuentes was born on Lanzarote in the Canary Islands. He first went to sea as a deck boy with his father at the age of 10. Fuentes प्रैक्टिकल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे. एक्चुअली ये 10 इयर्स के एज में ही सी में जाने लगे थे. इनको सारी चीज़ें अंडरस्टूड होने लगी थी, हाउ टू कैसे बोट को हम चलाते हैं, और वो जो एक्सप्रेशंस होता था हार्ड वर्किंग का, उन्होंने अपने इस चैप्टर में भी एक अलग कैरेक्टर लेंचो के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है. So now first when I am going to explain this chapter, before one activity was given here. Now one of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. सबसे सिंपल और आसान तरीका है किसी को भी मनी भेजने का, दैट बाय द पोस्ट ऑफिस. ठीक है. पहले क्या होता था कि आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ऐप्स बहुत सारे हैं. वी कैन यूज़ द मल्टीमीडिया सिस्टम. वी हैव अ टेक्नोलॉजी. वी हैव गूगल पे, फ़ोन पे, मैनी प्लेटफॉर्म वी कैन सेंड मनी क्विकली. बट नाउ बिफोर दीज, इसके पहले हमारे पास मनी भेजने का केवल एक सिस्टम होता था, एंड दैट वाज बाय द पोस्ट ऑफिस. ठीक है. नाउ द हियर द एक्टिविटी इज़ गिवन बिफोर द स्टार्टिंग द चैप्टर. हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे? क्या आपने कभी पोस्ट ऑफिस से मनी भेजा है या कभी मनी आपने रिसीव किया है? हियर्स व्हाट यू हैव टू डू. यहाँ देखिए हम क्या करने वाले हैं. एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, जैसा आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, discuss with your teacher in class the meanings of these words. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको आपको अपने क्लास में टीचर्स से आपको डिस्कस करना है. जैसे कुछ वर्ड्स हैं अबाउट द काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फॉइल, रिकॉर्ड. ये वर्ड्स जो होते हैं वो किस वे में हम यूज़ करते हैं. So I will give you the explanation of each and every word. Counter is a place where we go and take some needy things, whatever you want. Suppose you want to purchase envelope from the post office. So you will go to the counter and you have give the money and you can collect an envelope. Okay, counter clerk, the person who was sitting inside, he is giving you an envelope. Appropriate, that is a proper, suitable, we can say. Acknowledgement, that is just like admit to a truth, it means कि yes, I received your money. That is given the confirmation, evidence कि okay, I have received your money, though that is called acknowledgement. Counterfoil, that is a record, and record is that is a note down some data, that is called record. Consult a dictionary if necessary. If you don't know about the word meaning of these words, you can find in a dictionary. Now are these words corresponding to these English words in your language? क्या ये words जो हैं आप कभी इंग्लिश बोलते समय आप उन चीज़ों को यूज़ करते हैं? So now here the activities related to the money order. So first, post office. When you go to the post office,
the counter you have asked the money order. Now then after counter clerk given you the money order and it's a charge of 50 paise, and then after you have to write on the block letter, because block letter gives you proper understanding. There is no problem whatever you are writing, in which way you are writing, but when you are writing in a block letter you can understand properly. Amount of money that a clerk he charge some money, जैसे जितना आपको अमाउंट भेजना है उस अमाउंट पे क्लर्क चार्ज समथिंग एक्स्ट्रा. ओके, सपोज़ 1000 अगर आपको सेंड करना है तो 10, 20, 50 जो भी उनका एक्स्ट्रा सेंडिंग चार्ज हो वो लगाते हैं. देन आफ्टर एक्नॉलेजमेंट, इसके बाद आपका टर्न आ जाता है एक्नॉलेजमेंट का. सो नाउ यू हैव टू सीन हियर देयर आर मेनी टाइप्स. आपको फिर ऐसे मनी ऑर्डर फिल करना होता है एंड देन आपको सेंड करना होता है. उससे पहले आपको कुछ स्टेप्स भी फॉलो करने होते हैं अबाउट द सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डिटेल्स, और सबसे लास्ट में देखिए 6 पॉइंट पे आपको क्या होता है, दैट इज़ अ मैसेजिंग स्पेस. अगर आपको कुछ मैसेज भी लिखना हो तो 30 वर्ड्स 25 वर्ड्स में आप मैसेज करके भेज सकते हैं. ये भी फैसिलिटीज़ उसमें होती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज़ अ गिवन बिफोर यू रीड. पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अपने एक्सप्लेन चैप्टर में. ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है. नाउ सी हियर, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो विश्वास होता है, फेथ होता है, फेथ इज़ अ डिटर्मिनेशन. फेथ क्या करता है, आप किसी भी चीज़ को मूव करा सकते हो, माउंटेन तक को आप मूव करा सकते हो. बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस चीज़ों पे अपना फेथ रखना चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज. ये जो क्वेश्चंस है उसको इस स्टोरी में बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे फार्मर की स्टोरी है जो पूरे वैली में अकेला रहता है, कोई भी उसके साथ नहीं है. अचानक से बारिश होती है और उसकी जो फसल होती है वो ख़राब हो जाती है. क्यों? क्योंकि बारिश जो थी वो हेलस्टोन में कन्वर्ट हो जाती है, जस्ट लाइक अ फ्रोज़न आइस. ऐसे में लेंचो जो फार्मर था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है. क्यों? क्योंकि फार्मर का जो प्रोडक्शन था वो पूरा ख़त्म हो जाता है, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ऐसे में वो आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है कि अपने फ्यूचर में वो कैसे आगे अपने फैमिली को अपना कैसे सरवाइव करेंगे. फिर वो एक पूरे एरिया में जो कोई नहीं रहता है तो वो किसी से हेल्प लेने की कोशिश करता है. तो वो केवल एक ही होप रखता है, टेक अ हेल्प फ्रॉम द गॉड. और गॉड एक ऐसे ही पर्सन है जो हर चीज़ों को देख सकते हैं, हर चीज़ों को अंडरस्टूड कर सकते हैं. एंड इस चैप्टर में भी लेंचो ने यही फेथ दिखाने का यहाँ पर कोशिश किया है कि गॉड उसकी मदद ज़रूर करेंगे. सो नाउ लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड. लेंचो एक फार्मर है और वो गॉड को लेटर लिखता है जब उसका क्रॉप्स ख़राब हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो रुइंड मीन डिस्ट्रॉय होना. आस्किंग फॉर 100 pesos. व्हाट इज़ द pesos? दैट इज़ अ यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ द लैटिन अमेरिकन. सो यहाँ पे लेंचो जो है वो गॉड से 100 pesos डिमांड करता है कि उसे वो 100 pesos दें. क्यों? क्योंकि उसकी फसल रुइंड हो गई है या फिर डिस्ट्रॉय हो चुकी है. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचोज का लेटर जो था वो गॉड तक पहुँचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड उसको मनी भेज सकते हैं या भेजते हैं? थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. आप सोचिए आपका आंसर्स क्या हो सकते हैं इन क्वेश्चंस के. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज़ बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. और आप गेस करिए कि आपकी जो स्टोरी है वो कैसे आगे बढ़ेगी जब आप पहले इसको रीड करने जा रहे हैं. नाउ यू कैन सी हियर द लेंचोज हाउस. लेंचो जो पूरी वैली में अकेला रहता है और वो भी एक छोटे से हाइटेड हिल पे, वहाँ से वो नीचे हर चीज़ को देख सकता है. जैसे उसके
कॉर्न के फसल जो थी वो देख सकता है, रिवर बहती है वो देख सकता है, और वहाँ वो अकेले रहता था. नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. नाउ द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल. नाउ हियर द हाउस, लेंचो का जो हाउस था वो पूरी वैली में अकेला रहता था. और वो हाउस कहाँ था? लो हिल के टॉप पे. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न. उस हाइट से कोई भी रिवर्स को, नीचे जो फील्ड है कॉर्न के उसको देख सकता था. एंड डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जो उसके रिप कॉर्न जो थे उसमें फ्लावर्स आ चुके थे, तो वो दूर से या उस लो हिल के ऊंचाई से उसे एक डॉट दिखाई देता था. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और उसके फ्लावर्स जो दिखाई देते थे ऊपर से वो ऐसा प्रॉमिस करते थे उसे कि एक बहुत अच्छी फसल होने वाली है. दैट इज़ द गुड फॉर द फ्यूचर. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. डाउनपोर मीन्स दैट इज़ अ हैवी रेन, और शावर मीन्स लाइट रेन, मतलब हल्की बारिश या बारिश. तो यहाँ पे उसकी जो एग्रीकल्चर एरिया था जहाँ पे कॉर्न उसने लगाया था, उस एरिया में उसको केवल एक हल्की बारिश या फिर बारिश की ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली मीन्स फ्रेंडली, अवेयर होना. तो लेंचो जो था वो अपने फील्ड को बहुत अच्छे से जानता था कि भाई अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उसकी फसल और अच्छी हो सकती है. तो लेंचो जो था अर्ली मॉर्निंग, सुबह से ही वो वेट कर रहा था. किसका? हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. वो केवल नॉर्थ ईस्ट में देख रहा था. क्यों? क्योंकि वहाँ से जो क्लाउड्स हैं वो आने वाले थे, और वो कोई काम नहीं कर रहा था, केवल स्काई में नॉर्थ ईस्ट साइड में देखे जा रहा था. नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब वो अपनी वाइफ से क्या बोलता है कि लग रहा है सच में हमें आज बारिश का पानी मिलने वाला है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, सपर मीन्स डिनर. वो वुमेन, लेंचो की वाइफ, जो डिनर बना रही थी वो रिप्लाई करती है, वो जवाब देती हैं, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान चाहेंगे तो. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. और उसका जो बड़ा लड़का था वो फील्ड में काम कर रहा था. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में ही खेल रहे थे. अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, कम फॉर डिनर. तब तक वो अपने काम में लगे रहे जब तक उनकी मदर ने उनको बुलाया नहीं कि चलो डिनर का टाइम हो गया है और अब आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये डिनर का टाइम था और सभी लोग बैठ के डिनर कर रहे थे. जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. जैसा लेंचो ने सुबह प्रिडिक्ट किया था, बताया भी था, अचानक से बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. और नॉर्थ ईस्ट साइड से माउंटेन्स जैसे बड़े बड़े क्लाउड्स जो थे वो अप्रोच करते हुए, आते हुए दिखाई दे रहे थे. सो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ अप्रोचिंग? कम नियर. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. और हवा जो थी बहुत ही खुशबूदार और एकदम तरोताज़ी जैसी चल रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. अब लेंचो जो था उसने डिनर को रोक दिया, और वो जैसे ही बारिश शुरू होती है वो बाहर रेन में आ जाता है. किस लिए आता है? क्योंकि वो जो रेन की खुशी थी वो उसको अपने बॉडी पे रेन को लेकर या गीला होकर उसको फील करना चाहता था. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जैसे ही फिर वो वापस घर में आता है वो अपनी वाइफ से खुशी से कहता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रहे हैं, दे आर न्यू क्वाइंस. ये तो नए क्वाइंस हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटल ones आर 5. ये जो बड़े ड्रॉप्स हैं ये 10 cent pieces के हैं, और जो लिटल ones हैं, जो छोटे हैं, वो 5s के हैं. सो नाउ हियर दैट इज़ अ cent. इट मीन्स हियर
1 rupee is equal to 100 part, 100th part of 1 rupees, that is a okay. So 1 upon 100 is equal to rupees 1, that is a 1 पैसा. Okay, तो यहाँ भी क्या हो रहा था, little ones that is a 5 means 100%, 10 cent, 10 cent के बाद फिर 5 cent. तो ऐसे वहाँ पे वो कैलकुलेशन करते जा रहा था. With a satisfied expression he regarded the field of reap corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब यहाँ ड्रैप का मतलब क्या है? ड्रैप वी कैन से when we are using as a verb it's a covered, but when we are using as a noun it's a long curtain. तो यहाँ पे रेन का, जैसे बारिश बहुत तेज़ होने लगती है तो क्या होता है, वी कांट सी बियॉन्ड द रेन. ठीक है, तो रेन से आगे हम नहीं देख सकते, तो एक कर्टेन टाइप में लग जाता है. तो जस्ट लाइक अ हियर, यहाँ भी जैसे ही बारिश शुरू होती है कॉर्नफील्ड को देखता है और बहुत ही सेटिस्फाई एक्सप्रेशन देता है लेंचो. क्यों? क्योंकि अब लग रहा था कि अब तो उसकी फसल बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगी और उसे अच्छा पैसा मिलेगा. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. लेकिन अचानक से बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती है. एंड अलॉन्ग विद द रेन, और रेन के साथ साथ वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. और बहुत बड़े बड़े हिल स्टोन्स, आइस क्यूब, आइस के टुकड़े वो गिरने शुरू हो जाते हैं. दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. और वो ऐसे दिखाई दे रहे थे, रिसेंबल मीन्स लुक्स लाइक, ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि वो सिल्वर कॉइन्स हों, एकदम नए नए सिल्वर कॉइन्स हों. द बॉयज़ एक्सपोजिंग दैमसेल्व्स टू द रेन. और जो बच्चे होते हैं, ऐसा सिल्वर कॉइन्स को वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन उसमें होता है कि जब वो देखते हैं तो रेन में दौड़ जाते हैं. रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स. और वो उस फ्रोज़न पर्ल्स को, उस हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए रेन में दौड़ जाते हैं. नाउ हियर द टू वर्ड्स आर यूजिंग for the one word like a hailstones. First is the silver coin, second is the frozen pearls. So you can understand that what is the silver coin, that is the hailstones, and what is the frozen pearls, it is the hailstones. Now the next, it's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब लेंचो जो था वो अपनी वाइफ से या अपने फैमिली मेम्बर से कहता है कि ये तो बहुत गलत होने लगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी हेलस्टोन्स निकल जाए, ज़्यादा देर तक न पड़े. क्यों? क्योंकि हेलस्टोन्स के पड़ने से उसकी जो फसल थी वो ख़राब हो रही थी. इट डिड नॉट पास क्विकली. लेकिन वो हेलस्टोन्स जल्दी नहीं गया. फॉर एन आवर्स, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. अब वो जो हेलस्टोन्स था वो हर जगह गिरता रहा, चाहे वो हाउस हो, गार्डन हो, हिल साइड हो, कॉर्नफील्ड हो या होल वैली. पूरे वैली में केवल हेल स्टोन्स ही दिखाई दे रहे थे. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. और उसका फील्ड जो था लेंचो का वो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि सॉल्ट भर गया हो, एकदम वाइट दिखाई दे रहा था.